Hello children. Now we are discussing chapter 15 wastewater management. Now wastewater. What is wastewater? The dirty water that is generated in your houses while you are washing your clothes, your utensils, you are washing your hands in your basin, you are flushing toilets. Every dirty water that is generated in your houses is considered collectively as wastewater. Okay. So now what does it contain? What it will be containing? It will be containing your fecal material, it will be containing your urine, the detergent while washing your clothes, while your utensils, the oils spills in your vegetables, by your vegetables, the dry fruits, the vegetable peelings, everything that is generated in the houses, it is being containing in that wastewater. Okay. Now it is harmful because it contains the microorganisms and it will be causing the various diseases like jaundice, cholera, typhoid. Okay, the wastewater causes various kind of diseases like this, the water-borne diseases, jaundice, cholera, typhoid. Okay, wastewater is also generated from the industries. Various processes are being done. Maybe anything is being made, like your cars, your industry, your leather industry, chemical industry, fertilizers, all these require water for processing, and all these generate the dirty water which are containing many kinds of harmful material in them. Hospitals, they contain the waste material that can contain very germ containing material, disease causing materials. Hotels, offices and other places, everywhere it is being generated. Okay. Now the rainwater that being flown, rainwater that falls on your roads, on the agricultural land, it contains the waste that are containing in your roadsides. Agricultural waste contain the land wasted from your क्या कहते हैं, the fertilizers, the pesticides. Okay, the fecal material, that is why the open defecation is being stopped, because it make the water very dirty. So the open defecation, क्या कहते हैं, it being generated in the village soils, that is being mixed with the rainwater. Okay. Now all this wastewater that is containing your fecal material, the fertilizer, these contain the sewage. What it makes, it makes the sewage. Okay. And the things that make it, the suspended impurities that are containing in it, like your fecal material, your urine, the dry leaves, everything, the fertilizers, the oil, the metals from the industries, the various kind of waste from your क्या कहते हैं, houses, like you while you are washing your clothes, all these make the contaminants. All these are the contaminants what make the water dirty. All these are the contaminants. Okay. Now, so proper disposal of these is required. So okay, so you are making the water produced at your homes, it needs to be disposed by the pipes from your houses to the सीवेज पाइप से वो कहाँ जाता है, आपको फाइनली उनको रिवर्स में ही डिस्पोज करना होता है. बट क्या हम इतना डर्टी वाटर रिवर्स में डिस्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, एक ट्रीटमेंट करना होता है. क्लियर? बिकॉज अगर हम इसको ओपनली रिवर या सी में डिस्पोज कर देंगे, इतना सारा, सोचिए, इंडस्ट्री से गंदा पानी आ रहा है, आपके घरों से गंदा पानी आ रहा है, हॉस्पिटल से गंदा पानी आ रहा है, ये सारा गंदा पानी अगर मिलके रिवर्स में जाएगा, इट विल बी वेरी हजार्डस. बिकॉज अल्टीमेटली वही रिवर वाटर तो हमारा फ्रेश वाटर हम कंज्यूम करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए. क्लियर? सो the second is proper drainage and the sanitation. Proper drainage means if your house can be considered as a single unit, if you are producing so much of dirty water from your washing your utensils, washing your clothes, washing your while bathing, from your washrooms, all these dirty water you are producing, it needs to be collected and passed through the pipes, the drainage pipe. So a proper drainage pipe system throughout the city is required,
तभी आपका अगर ड्रेनेज पाइप कहीं पे भी लीकेज करने लगता है तो गंदा पानी बाहर आ जाता है आपका, और वो प्रॉपर नहीं है तो जब आपकी, इसीलिए जब आपका बारिश होती है तो क्या होता है, सारा का सारा नाले पानी, क्योंकि वो सिटी से बाहर फ्लो ही नहीं पकड़ पाता है। जरा सा भी बारिश होती है तो क्या होता है, सारा का सारा पानी आपके रोड्स में फिल अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे ड्रेनेज आपके क्या है, ब्लॉक्ड है। आपके ड्रेनेज आपके पानी के फ्लो के लिए, अगर आप उसमें इतना ज़्यादा ड्राई वेस्ट डालेंगे, तभी आपके हर टाइप के वेस्ट होते हैं कि आपको सॉलिड वेस्ट अलग डालना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग डालना चाहिए, डिग्रेडेबल वेस्ट अलग, आपको नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट अलग डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो ड्रेनेज बने हैं वो गंदा पानी ले जाने के लिए बने हैं, ना कि आपकी जितनी भी ये आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं। जैसे कि बारिश हो रही, पता चले आपने प्लास्टिक के रैपर्स भी आपने बाहर सड़क पे डाल रखे हैं, पॉलीथिन्स भी डाल रखी हैं, तो सारा-सारा क्या करती हैं, आपकी ड्रेनेज को जाके क्या कर देती हैं, चोक कर देती हैं। तो इसीलिए जब बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ खाली गवर्नमेंट की कमी है कि वो जैसी बारिश होती पानी भर जाता। आप भी उसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब डर्टी कर रहे हैं, आप जितना भी पॉलीथिन्स अपने ओपन में फेंक रहे हैं, आप जितना ज़्यादा क्या कहते हैं प्लास्टिक रैपर्स फेंक रहे हैं, वो सारे क्या करते हैं, इस ड्रेनेज को जाके चोक कर देते हैं। जब चोक कर देंगे तो पानी वहाँ से बहेगा ही नहीं, तो जब बारिश होगी वो क्या करेगा, सारा का सारा पानी ओवरफ्लो करेगा रोड्स पे। क्लियर? सो प्रॉपर ड्रेनेज मतलब वो पाइपलाइंस बिल्कुल आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, आपके हाउसेस एक-एक हाउसेस से कनेक्टेड होके आपके मेजर आपके जो वो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ तक जानी चाहिए, और ट्रीटमेंट प्लांट से आपके रिवर्स में फ्लो कर देनी चाहिए। तो जहाँ पे भी अगर प्रॉपर ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज होने लगेगी। ओपन एरिया में आप गंदा पानी, ऐसे आप देखिए मुझे, खुला रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे फ्लाइज जनरेट होंगी, मॉस्किटोज जनरेट होंगे, तो सारे क्या करेंगे, डिसीजेस कॉज करेंगे। क्लियर? सो flies, breeding of the flies by mosquitoes, germs will be it will be generated, as well as when this kind of water will be provided into the fresh water, it contains various kind of microorganism and germs. When they will mix with the fresh water, they will compete with the organism that are already living in the river. They will compete for them, and there will be the scarcity of the oxygen, because living organism require oxygen for survival. So when these unwanted microorganism and germs will mix with the fresh water, what they will do, they will need the oxygen that is present in the water, so they will compete with the other living organism that are living already in the river for the oxygen, for the amount of oxygen. Clear? So this will be the scarcity of the oxygen that will be present over there. Okay, now, so proper disposal system, drainage system should be there. अगर आपकी जो ड्रेनेज है वो आपके ओपन रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आपके ड्रेनेज उसमें मिल जाएंगे तो हो सकता है वो कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइंस में भी आपके मिक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका वो ड्रिंकिंग वाटर भी कंटामिनेट हो जाएगा। क्लियर? ना, फ्लड्स और स्ट्रॉम वाटर। ओके, फ्लड्स क्या है, जब आपकी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, वो एक्स्ट्रा वाटर है आपके ड्रेनेज, तो आपके सिटी के नॉर्मल वाटर ड्रेनेज के लिए है। सो आपको क्या है, अगर आपके फ्लड क्या कहते हैं स्टॉर्म्स आते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सिस्टम होना चाहिए। देखिए इसमें जैसे आपका ये दिया हुआ है, सी, ये आपके प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स है, ये आपके सेकेंडरी देखिए क्या है, आपके फ्लड वाटर पाइप्स है। अगर आपका पानी इस ऊपर वाले में ज़्यादा हो जाता है, अगर आपका पानी इन ऊपर वाले पाइप्स में ज़्यादा हो जाता है तो सारा का सारा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से फ्लो करने लगेगा, आपके स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन से। सो आपके सिटीज़ में ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर जब बारिश होती है तो वहाँ क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा आपके पाइपलाइंस होने चाहिए कि ये आपका जो एक्स्ट्रा पाइपलाइन है, इससे क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा ओवरफ्लो आपका क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, जिससे कि आपका जब बारिश हुई तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे आ जाएगा, और वो एक्स्ट्रा वाटर से आपका क्या हो जाएगा, रिवर में फ्लो हो जाएगा, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट प्लांट भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रीट करने के लिए बना हुआ है, तो क्या होगा, अगर आपके जब बारिश होती है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पाइपलाइंस आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा फ्लड आपका निकल जाए, और ऊपर की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि आपका पानी नीचे आ सके। क्लियर? सो ये आपका फ्लड सिस्टम होता है, जिससे कि आपको जितना भी पानी एक्स्ट्रा है वो नीचे एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन से फ्लो होने लगे, और जिससे कि वो डायरेक्टली आपका रिवर में चला जाए, क्योंकि वो आपका वाटर है, इतनी जल्दी इतना आपका गंदा नहीं होगा। ड्रेनेज सिस्टम आपका कहाँ जाना चाहिए, पहले सीवेज सिस्टम से होता हुआ आपका जाना चाहिए, जिससे कि आपका पानी उतना गंदा उसमें ना जाए। क्लियर? नाउ व्हाट इज सीवेज सिस्टम? The sewage system consists of a network of underground pipes
that transfer the sewage from the point it is produced like your home to the point where it is treated like the sewage treatment plants बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। फाइनली हमें करना क्या है, जितना भी हमारा सीवेज का पानी है उसको वाटर सिस्टम में डिस्पोज करना है, लेकिन उसके पहले उसको कहाँ जाना है, ट्रीटमेंट, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। क्लियर। ये हमारे सीवेज सिस्टम किससे बने होते हैं, आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप से, पीवीसी पाइप से आपके ये कनेक्टेड होते हैं। क्लियर। नाउ सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, इट इज बीइंग रिमूवल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इट इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने भी आपके फिजिकली चीज़ों को हटाना, केमिकली चीज़ों को हटाना, उनमें भी जितने भी बायोलॉजिकली आपके जर्म्स हैं ये सब हैं, उनको किल करने के लिए आपको उसमें सारे की सारी स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। क्लियर। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज द प्लेस वेयर योर वाटर इज बीइंग ट्रीटेड। आपके घर से, आपके सोसाइटी से, आपके शहर से जितना भी पानी कलेक्ट हुआ वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ पे ट्रीट होके ही आपका रिवर्स में फ्लो होता है। तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमारा स्क्रीनिंग आता है। स्क्रीनिंग का मतलब हमें जितना भी सॉलिड, वहाँ पे जितना भी सॉलिड आपका है वो उसको पहले अलग कर लेना। जैसे आपके पॉलीथीन रैपर्स हो गए आपने जो रोड पे डाले थे, या आपकी जितनी भी क्या कहते हैं ड्राई लीव्स हो गई, आपके कहीं से कुछ भी कैन्स आ गए, वाटर कैन्स आ गए आपके कहीं से भी, तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है सबसे पहले हम पानी से वो अलग कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम, स्क्रीनिंग। द वेस्ट वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू द स्क्रीन ऑफ वर्टिकल बार्स विच रिमूव द लार्ज सॉलिड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बैग, canes and the sticks. Then the water is then passed through the settling tanks known as the grit chamber where the solids such as sand, सिल्ट, ग्रेवल्स आर सेटल्ड आउट। तो सेकंड हम क्या करते हैं, पहले हमने वर्टिकल बार्स, ऐसे छन्नी हो गई, छन्नी तरह की मान लीजिए, जैसे ये देखिए आपके वर्टिकल बार्स हैं, तो ये वर्टिकल बार क्या कर रहे हैं, पीछे ही आपका जितना सॉलिड वेस्ट है उसको आपका रोक ले रहे हैं। फिर आपके ग्रिट चैम्बर में जितना भी आपका क्या कहते हैं आपका सारा का सारा वो है स्टॉप हो जा रहा है, जितना भी आपकी सैंड है, क्योंकि वो अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नेचुरली ही वो सेटल डाउन हो जाएगी आपकी। देन फिर आता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आफ्टर दिस द वेस्ट वाटर passes into sedimentation tank called क्लेरिफायर में क्या है, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल डाउन। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब जितनी आपकी लीव्स, क्या कहते हैं लीव्स तो आपने पहले निकाले, जितना आपका फीकल मटेरियल है, जितना भी आपका वेस्ट जो आपके वॉशरूम जनरेट हुआ फीकल मटेरियल, वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा। अब स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर आपका नीचे जितना भी आपका, उसको स्क्रैपर से नीचे की तरफ आपको अलग कर लिया जाता है। स्लज, दैट इज नोन एज द स्लज, जो आपका ये फीकल मटेरियल आपका एक सेमी लिक्विड की तरह, आपका सेमी सॉलिड की तरह नीचे कलेक्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। द फ्लोटिंग मटेरियल लाइक ऑयल, ग्रीस आर बीइंग रिमूव्ड बाय द मशीन। जितना आपका ऊपर का आपका ऑयल ग्रीस है, जैसे आपने सीरिंज देखी है, सीरिंज जैसे आप उसमें आप खींच लेते तो उसको क्या बोलते हैं, स्किमर। आपके स्किमर की हेल्प से उपमा, क्योंकि ऑयल आपका ऊपर फ्लोट करने लगता है, कहीं इंडस्ट्री से ऑयल आया, आपका हाउसेज से वेस्ट ऑयल आया, तो सारा का सारा क्या हो जाता है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम एक ऐसे इंजेक्शन की तरह उसको पंप आउट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्किमर बोलते हैं। अब जो पानी हमारा ऊपर ऊपर का जनरेट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। क्लैरिफाइड वाटर, जो आपका ऊपर ऊपर पानी हमारा रह गया, सबसे ऊपर से हमने ऑयल निकाल लिया, नीचे हमारा स्लज इकट्ठा हो गया, और जो बीच का पानी है उसको हम कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर। अब जो नीचे हमारा स्लज बचा है वो किस काम आता है, मीथेन जनरेट करने के लिए काम आता है, मतलब बायोगैस जनरेट करने के लिए काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमस मटेरियल लाइक आपका जितना भी फर्टिलाइजर्स है। पहले उसमें क्या करते हैं हम, एनारोबिक बैक्टीरिया से वो नेचुरली जितना डिकम्पोज हो सकता है वो, मतलब उन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, दे कैन डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ऑल्सो। तो पहले हम उनको जितना भी एनारोबिक क्या कहते हैं रेस्पिरेशन उसको करने देते हैं, जिससे कि वो सारा का सारा क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। देन ये सारा का सारा ड्राई स्लज हम क्या करते हैं, ड्राई स्लज हमारा क्या कहते हैं फर्टिलाइजर की तरह, उसमें जितना भी ड्राई स्लज अगर उसको कर देंगे तो फर्टिलाइजर की तरह हमारा कहीं भी यूज हो जाता है। मीथेन हमारा क्या है, बायोगैस है, जो हमारे फ्यूल की तरह यूज हो जाती है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आता है,
एरोबिक बैक्टीरिया। अब जितना पानी हमारे पास बचा है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कस के सप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने से क्या है, जितने भी उसमें जितना भी हमारा फीकल मटेरियल है, उन बैक्टीरियाज वो बैक्टीरिया उनको कंज्यूम करके ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब उनको खा खा के। जैसे आप पत्ती सोचिए, पत्ती आपकी नेचर में गिरती है ड्राई, कुछ दिन बाद वो पूरी गायब हो जाती है नेचर में। क्यों? क्योंकि डीकम्पोजर्स उनको नेचर में क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। वैसे ही हमारे डी जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो चीज़ों को क्या कर देंगे, हमारे डीकम्पोज कर देंगे। कहाँ कर देंगे? इरेशन टैंक में। इरेशन टैंक में हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एरोबिक क्या कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज उसको ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। क्लियर? देन इसी को हम, जिसमें हमारे ये एरोबिक बैक्टीरियाज मिले होते हैं, इसको कहते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। क्लियर? एक्टिवेटेड स्लज फिर हम उसके और ट्रीटमेंट एरेशन टैंक में फिर से यूज़ हो सकता है। देन जो ड्राइड स्लज है वो हम मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। क्लियर ना? डिसइंफेक्शन, अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज रह गए उनको कैसे करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं और अल्ट्रावायलेट। घर में भी आपके जो लगा होगा आरओ, उसमें आप देखते होंगे यूवी रेज लिखा होगा। तो यूवी रेस क्या करते हैं, आपके बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट क्लोरीन ऐड करते हैं, देन अल्ट्रावायलेट रेस से एक्सपोज कर देते हैं। क्लियर ना? तो आपका ये क्लीनिंग वाला स्टेप सब समझ में आ गया आपका। सबसे पहले क्या किया हमने, स्क्रीनिंग करी, जिसमें हमने वर्टिकल बार से सॉलिड पार्टिकल्स को हटा लिए। फिर हमने सैंड, सिल्ट, ग्रेवल्स को सेटल डाउन कर लिया। देन हमने उसमें क्लैरिफायर से क्या किया, सेडिमेंट जितना और सारा ऑर्गेनिक मटेरियल था, फीकल मटेरियल था, उसको सेटल डाउन होने दिया। क्लियर ना? स्क्रैपर से क्या किया, उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। नीचे के उसको क्या कहते हैं, नीचे जो हमारा सॉलिड मटेरियल बैठ गया उसको कहते हैं स्लज। ऊपर जो हमारा ऑयल और ग्रीस था उसको हमने रिमूव कर लिया, किसकी हेल्प से, स्कीमर की हेल्प से। अब जो पानी जनरेट हुआ उसको हम कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर। क्लैरिफाइड वाटर हमने अलग कर लिया। नीचे हमारा जितना भी स्लज था उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के जितना भी हमारा डिकम्पोजिशन हो सका उसको पॉसिबल किया। क्लियर? उसमें मीथेन गैस जनरेट हुई जो हमारा बायोगैस फ्यूल की तरह यूज होता है। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया, द एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। जो हमारा पानी हमने क्लैरिफाइड वाटर अलग किया था, जिसमें अब कुछ और बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे, तो उसमें हमने खूब सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी। उस ऑक्सीजन से क्या, उस पानी में भी अब जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्लियर? अब जो हमारा बचा, वो हमारा जितना भी फीकल मटेरियल बचा था वो सारा का सारा क्या हो गया, यूज हो गया। इसी एक्टिवेटेड स्लज को हम फिर से इरेशन टैंक जो हमारा था उसमें यूज कर सकते हैं। देन क्लोरीन, अब जो पानी, अब ने और साफ पानी अलग कर लिया, क्योंकि वो स्लज सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा। जितना डिकम्पोजन जा रहा बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके नीचे बैठा देगा वो सॉलिड पार्टिकल्स को। अब हमने जितना पानी आगे निकाला है उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस को शो करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, हम अपने एंड पे कौन कौन सी चीज़ों को अपने एफर्ट्स कर सकते हैं। डू नॉट डिस्पोज कुकिंग ऑयल एंड फैट्स इन द किचन सिंक। हमारा जो किचन सिंक है उनको क्या करते थे, ऑयल और फैट उसमें मत डिस्पोज करिए। वो क्या हो जाते हैं, आपके पाइप को ब्लॉक करते हैं। अल्टीमेटली जब आपके पाइप को ब्लॉक करेंगे तो आगे जितने भी पाइप्स होते हैं उनको क्या करेंगे, ब्लॉक करते जाएंगे। क्लियर? देन आपकी टी लीव्स हो गई, सॉलिड फूड हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गए, सारा का सारा क्या होता है आपका कहीं भी डिस्पोजल में, कोई भी सॉलिड वेस्ट आपका कहीं पे भी आपको उसमें नहीं करना चाहिए, कोई भी मतलब ड्रेनेज में, क्योंकि ड्रेनेज आपके पानी के लिए बने, सॉलिड वेस्ट के लिए नहीं। क्लियर? वो कहीं भी जाएंगे उनको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। क्लियर ना? डू नॉट डिस्पोज ऑफ द केमिकल्स लाइक योर पेंट मेडिसिन। ये सब पेंट मेडिसिन क्या करते हैं, जो उसमें अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो उनको डिकम्पोज करने की भी हेल्प करते हैं, लाइक वो, तो उनको भी क्या करते हैं, किल कर देते हैं। क्लियर ना? ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ द सीवेज, जैसे आपके कुछ गांव होते हैं वहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाए। सेप्टिक टैंक मतलब सारे हाउसेस के जितने भी आपका फीकल मटेरियल जनरेट हो रहा है वॉशरूम से, उनको एक सेप्टिक टैंक में रखते हैं। वो जब नेचुरली एनारोबिक रेस्पिरेशन डिकम्पोज होता है तो उसमें मीथेन गैस जनरेट होती है। उस मीथेन गैस को वो फ्यूल अप की तरह आपको यूज़ कर सकते हैं। वो कहीं पे भी आपके सिलेंडर्स में फिलअप हो गया, आपको फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है। क्लियर? वर्मी कंपोस्टिंग, सेम आपका सेप्टिक टैंक की तरह हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक जगह कंज्यूम मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें आपके रेड वॉर्म्स डाले जाते हैं। वो रेड वॉर्म्स क्या करते थे, उसको आपको मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस मेन्योर को हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी सॉइल में यूज कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट, अब इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि कंटिन्यूशन में हो जाए, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके क्या कहते हैं 1 या 2 चैप्टर्स का एक साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके आपकी रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ फिर आपका रह जाएगा फिर आपका क्या कहते हैं असर्शन रीजंस रह जाएंगे, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी अभी आज ही किसी वीडियो में। ओके, नाउ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, न्यू वर्ड, सीवेज क्या है आपका? Waste water from houses, industries, hospitals and rainwater that runs over land containing waste material such as excreta. Sludge क्या है? Solid material. आपने क्या किया था, जब आपका सैंड और सिल्ट इकट्ठा हो गई थी उसके बाद ये क्या किया था, सेडिमेंटेशन टैंक में हमने क्या किया था, वो सारा का सारा स्लज नीचे इकट्ठा कर लिया, तो ऊपर से ऑयल निकाल लिया, बीच का पानी क्लैरिफाइड वाटर। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ कंसेप्ट मैम आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट में आप आ सकते हैं। जैसे कि आपके इसमें देखिए, वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ जनरेट होता है? रेन वाटर रन ऑफ से, ऑफिस से, होटल से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से, होम्स में। बनाता क्या है? सीवेज, वेस्ट वाटर फॉर्म सीवेज टेकन बाई सीवेज सिस्टम से कहाँ जाता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या है? वर्टिकल बाल, सबसे पहले सॉलिड वेस्ट हटाने के लिए, ग्रिट चैम्बर, जिसमें हमारा ग्रिट चैम्बर में क्या इकट्ठा हो जाता है, नीचे जितना भी हमारा क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट है वो हमारा ग्रिट चैम्बर में नीचे बैठ जाता है। फिर हमारा क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे स्लज इकट्ठा हो जाता है। स्लज इकट्ठा होकर फिर हमें क्लैरिफाइड जो वाटर मिलता है उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। फिर क्लोरीन और यूवी रेस को हम दिखा के उसको क्या कर देते हैं, डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? कॉजेज क्या क्या करता है वेस्ट वाटर? डिसीजेज और वाटर पोल्यूशन। आपका बहुत सिंपल सा है, सारे के सारे देख के जाइएगा। व्हाट इज सीवेज? वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल एंड रेन वाटर दैट रन्स ओवर लैंड कंटेनिंग वेस्ट वाटर सच एज एक्सक्रीटा इन द सीवेज। व्हाई इट इज नेसेसरी टू ट्रीट सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ इन अ वाटर बॉडी? because it can result in a major health hazard for the humans and the एनिमल्स। आप अगर डायरेक्टली डाल देंगे तो वही पानी घूम के हम कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करेगा, हेल्थ हैजार्ड्स को कंज्यूम करेगा ना। येलो फीवर, मलेरिया, कौन कौन सी डिसीजेस जो आपका क्या कहते हैं वो करता है आपका? येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, कॉलरा, ये सारी डिसीजेस जनरली आपका इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से या वाटर बॉर्न डिसीजेस आ जाए तो आप इनमें ये लिख सकते हैं। क्लियर? वाई इज कॉलरा आउटब्रेक कॉमन आफ्टर फ्लड्स? ड्यूरिंग फ्लड्स सैनिटेशन सिस्टम कैन ओवरफ्लो, फ्लड water may contaminate drinking water supply, causes sewage to backflow and pipelines may burst. For this reason cholera outbreak, जब आपका पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है हर जगह पे तो वो पीने के पानी को भी कंटामिनेट कर, जब आपका डर्टी वाटर उसको कंटामिनेट, तो वही पीने का पानी जब हम पीते हैं तो वाटर बॉर्न डिसीजेज लाइक कॉलरा हमें हो जाता है। इन अ सिटी देयर आर सेपरेट पाइप्स फॉर डिस्पोजिंग सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर मैंने बताया था जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टॉर्म वाटर के लिए क्या है, बिकॉज इन अ सिटी द अमाउंट ऑफ स्टॉर्म वाटर कलेक्टेड कैन बी वेरी लार्ज, दिस कैन कॉज ओवरफ्लोइंग और द बस्टिंग ऑफ द सीवेज पाइप्स if there are no separate pipes for the sewage and storm water. Also large quantity of storm water cannot be properly treated in the treatment plant. हमने जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है वो लिमिटेड जो सिटी का जनरेट होता है सीवेज उसके लिए बनाया, ना कि हमारा जो फ्लड्स में। तो हमें सेपरेट हमारा सिस्टम होना चाहिए कि फ्लड आए तो अलग पाइपलाइन से एक्स्ट्रा वाटर हमारा नदी में सीधा चलता चला जाए। क्लियर ना? व्हाट प्रोसेस डज सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व? कौन कौन से होते हैं? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल processes. How can contamination of the drinking water occur from sewage even in a covered drainage? Contamination of the drinking water can happen in a covered drainage also. A common reason is damaged, leaky joints in the water pipes in areas where the water pipe and sewage pipe are close together. दोनों जब अगल बगल होते हैं, जरा सा लीकिंग भी हो गया एक दूसरे में, तो वो क्या हो जाएगा, पीने का पानी गंदा हो जाएगा। List the ways in which waste water present in the sewage is generated and the kind of contaminants present in it. When we use water at home to wash clothes, utensil, bathe, flush water, it becomes dirty. This dirty water is the wastewater. It contains urine, fecal material, detergent, dirt released after washing clothes, utensils, food waste, harmful microorganisms that can cause diseases such as jaundice, cholera, typhoid and present. Wastewater is also generated in the industries, hospitals, क्या कहते हैं hotels, offices. Industrial waste contain poisonous chemicals.
क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम द हॉस्पिटल में कंटेन सेवरल टाइप ऑफ डिसीजेज। डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेन वाटर रन फ्लो में क्या क्या होता है आपका, पिकअप वेरियस कंटामिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल वेस्ट, ऑयल ग्रीस, ह्यूमन फीकल एंड ऑल्सो द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड्स। क्लियर, तो ये आपका पॉइंट क्लियर है, कहाँ कहाँ से हमारा सीवेज जनरेट होता है, होटल, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, सबको आप सेपरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज। ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज सीवेज में कलेक्ट इन द पूल, स्टैग्नेट्स, and these are perfect place for the flies and the mosquitoes to breed. This may spread disease, yellow fever, malaria, dengue. Different types of germs such as the cholera can cause the multiple stagnant and decay. वेस्ट वाटर लीड्स टू अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत सारी, अगर इम्प्रॉपर ड्रेनेज हमारा प्रॉपर नहीं होगा, सारा गंदा पानी प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा शहर से, तो वो एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मॉस्किटो फ्लाइज जनरेट होंगी, डिसीजेस जनरेट होंगी जो हमारे प्रॉब्लम करें। क्लियर। what dangers result from the improper storm water from the drainage system. इफ़ अ सिटी डज नॉट हैव अ प्रॉपर स्टॉर्म वाटर, मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो रेन में होता है उसको निकालने के लिए नहीं होगा, दिस वाटर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग ऑन द स्ट्रीट्स, मे इवन एंटर द हाउसेज, दिस इज डेंजरस फॉर द पब्लिक हेल्थ। प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम कैन ओवरफ्लो ड्यूरिंग फ्लड, जो हमारा सैनिटेशन हमारा है, जितना भी हमारा वेस्ट है वो क्या करने लगेगा, वही गंदा पानी ऊपर फ्लो करने लगेगा। रेस्ट ऑफ फूड water contamination, drinking water supplies bursting, pipeline, sewer, black flow, और द इवन मेन हमारा क्या है, सारा का सारा पानी ओवरफ्लो स्ट्रीट्स पे करने लगेगा, घर में आने लगेगा, घर में आने लगेगा तो क्या होगा, डिसीजेस कॉस्ट होगी, हमारी क्या कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा सारा प्रॉब्लम होगा। नाउ इलाबरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट। कौन कौन से मेन सीवेज है, पहले स्क्रीनिंग करते हैं, आपको बताया वर्टिकल बार की हेल्प से सॉलिड वेस्ट निकाल लेते हैं। देन हमारा इट इज पास थ्रू द ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर में सैंड, सिल्ट, ग्रेवल्स को नीचे इकट्ठा कर लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता है, कॉल्ड अ क्लैरिफायर। क्लैरिफायर में क्या होता है, ऊपर की ग्रीस इकट्ठा हो जाती है स्किमर की हेल्प से, और जो पानी निकलता है उसको हम बोलते हैं क्लैरिफाइड वाटर। नीचे हमारा क्या इकट्ठा हो जाता है, स्लज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, एयर इज पास फ्रॉम द क्लैरिफाइड वाटर इन द एरेशन टैंक, इट अलाउज द एरोबिक बैक्टीरिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो क्लैरिफाइड वाटर हमने निकाला था, नीचे स्लज और ऊपर ऑयल निकालने के बाद उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, जिससे कि जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी हमारा क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। इन वॉट वेज इज द स्लज ऑब्टेन फ्रॉम द WWTP यूज। द स्लज जो हमारा नीचे हमने क्या किया था, फीकल मटेरियल जितना आपने वेस्ट किया था उसको हम स्लज, तो वो कहाँ होता है, मीथेन, मतलब हमारी फ्यूल की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ह्यूमस जो हमारा फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। क्लियर। सो डिकम्पोजिशन ऑफ द स्लज कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर, मीथेन एज द फ्यूल। How can each one of us help in making the sewage treatment in a city more efficient? Do not dispose of the cooking oil fats in the kitchen sink. They block the pipe when they are hardened. Throw in the dustbin. Do not dispose of the leaves, solid leaves or the sanitary packs in the drainage. They will block the drainage. Do not interfere with the dustbin. Okay, ये आपका डिकम्पोजिशन आपका कहाँ, डस्टबिन में देना चाहिए। जो आपके केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, मेडिसिन है, उनको सिंक में नहीं डालना चाहिए, वो अच्छे बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। क्लियर। नाउ मेंशन 3 वेज दैट कैन बी यूज फॉर द सीवेज डिस्पोजल इफ अ प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट अवेलेबल। इन वन सच मेथड इन्वॉल्व, मैंने क्या बताया, सेप्टिक टैंक। जहाँ जहाँ पे इतना प्रॉपर आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, वहाँ सेप्टिक टैंक होता है। सेप्टिक टैंक कैसे वर्क करता है, द सीवेज इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ टैंक विच इन विच एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका प्लेस लेता है। क्लियर। एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर, वो क्या करेगा, सारे के सारे एक्सक्रीटा को क्या कर देगा, बायोगैस प्लांट में क्या कहते हैं, कवर ड्रेनेज होगा। बायोगैस जब आपका यूज, बायोगैस जनरेट होगी तो वो किसके लिए यूज हो सकती है, फ्यूल की तरह। क्लियर। ह्यूमन एक्सक्रीटा कन्वर्ट इनटू वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की तरह आप उसमें यूज कर सकते हैं। 2 मेथड्स आपके हैं, तो आप ये कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट में कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट। ये 3 मेथड आप याद रखिएगा, सेप्टिक टैंक, बायोगैस प्लांट और वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट, विच पाइप शुड बी बिगर, दोज फॉर द सीवेज और दोज
for the storm pipes. Storm pipe discharge should be bigger because the amount of storm water can be very large. Storm water के पाइप्स बड़े होने चाहिए जिससे पानी एक साथ बाहर आपका निकल जाए जब ज़्यादा हो. We realize that plastics being non-biodegradable are an environmental hazard. However, while discussions the cooking of the sewage drains by the plastics blocking होगा यहाँ, blocking of the sewage drain, why do we only talk about the plastics? Because the quantity of the plastic disposed of in a form of the plastic bags many times, क्योंकि हमारा जितना भी आपकी प्लास्टिक है उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द ऑयल्स और ये सब जो हम जनरेट कर लेते हैं, इसलिए हम मोस्टली किसकी बात करते हैं, प्लास्टिक की जनरेट बात करते हैं. ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर. पूरा आपका डिस्कशन हो गया है पूरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ. जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं दूसरे चैप्टर्स के उनका एक साथ PDF बना के अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. थैंक यू क्लास.